Respected Principal Ma'am, Mrs. Farah Kazmi, our esteemed guests from Jaipur, Mr. Vineet Sharma and Mr. Vipul Sharma, who are very able trainers from the city, Mr. Anand Tripathi and Mr. Om Prakash, who manage at the home level, my dear teachers, children, and the Team 360 entire team. I welcome you all on behalf of Pioneer Montessori School, Jankipuram. Team 360 has become a popular brand name in giving children supplementary education, mid-brain activation, and DMIT and so many other related tests and other activities which are conducted through workshops in over 450 schools all over the country, providing benefits to over 10 lakh children in our country. DMIT is Dermatoglyphics Multiple Intelligence Test, a scientific study associated with fingerprint patterns and brain lobes. Am I right, sir? This helps in understanding a unique inborn potential and personality of a child and guides him or her for the right path according to their potential. They also focus on mid-brain activation related to the functioning of the pineal gland. The Team 360, with its full zeal, is also making waves in the international waters. I wish Team 360 to go a long way and benefit our children as much as possible. I welcome you all, sir, once again, and please stand up to light the lamp. We wish you to come on the stage, sir. Thank you so much, sir. And I now call on Anya and Sanvi to please welcome our esteemed guests. Anya and Sanvi. A round of applause for Mr. Vineet Sharma and Mr. Vipul Sharma. For our principal ma'am. And now, sir, can we proceed with the events? Good morning to all of you. सबसे पहले हम मैनेजर सर को, प्रिंसिपल मैम को और सभी टीचर्स, स्टाफ एंड जो भी यहाँ पे एसोसिएटेड लोग हैं, सबको इस बात का धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपके यहाँ ये प्रोग्राम करने का मैनेजर सर की तरफ से, स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से ये परमिशन मिला और हम लोग इसके लिए बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आज यहाँ पे हम आप लोगों के बीच हैं। और हमारे यहाँ टीम 360 जयपुर से के हमारी टीम के डायरेक्टर्स विपुल सर एंड विनीत सर आपके साथ हैं और इनका हम स्कूल की तरफ से और आर्यवर्त की टीम लखनऊ की तरफ से स्वागत करते हैं कि आज वो हमारे बीच हैं और आपको कुछ चीज़ों के बारे में यहाँ पे बताया जाएगा। जैसा कि थोड़ा बहुत अभी इंट्रोडक्टरी मैम ने बताया कि DMIT एंड ऑल दोज बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जो अभी डिस्कस की जाएंगी, बट एक जो सबसे बड़ी चीज़ है कि एक ऐसी चीज़ जो अभी तक शायद आपने सुना नहीं होगा, अभी तक शायद आपने देखा नहीं होगा और अभी तक आपने किया भी नहीं होगा, लेकिन दुनिया के 150 से ज़्यादा देशों में ये चीज़ अप्रूव्ड हो चुकी है और चल रही है।
और उसी प्रोग्राम से संबंधित जो इंटरनेशनल ट्रेनर्स, जो कि इंडिया में फर्स्ट टाइम जो सर्टिफाइड ट्रेनर्स हैं, वो 2 बड़ी हस्तियां आपके बीच हैं, और जो कि इंटरनेशनली सर्टिफाइड हैं और मोटिवेटर्स हैं, मेंटर्स हैं और बहुत ग्रेट लीडर्स हैं। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ विपुल सर का और विजय सर का हम स्वागत करते हैं। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके बीच, एक कहावत है, हाथ कंगन को आरसी क्या, चीज़ें सब कुछ आपके सामने। मैंने कहा ना कि ना तो आपने देखा है, ना आपने सुना है, ना आपने कभी किया है। आज यहाँ पे आप सुनेंगे भी, देखेंगे भी और अपने सामने प्रैक्टिकल भी होगा, जो कि आपके लिए अमेजिंग होगा। आपने कभी ऐसा चमत्कार देखा ही नहीं होगा। बट ये कोई चमत्कार नहीं है, मिरेकल नहीं है, मिरेकल जैसा है। और अब इस चीज़ को बहुत आगे ना खींचते हुए हम सीधे विपुल सर को इनवाइट करेंगे, वो आएँ और अपनी बात। विपुल सर से निवेदन करना चाहूंगा कि प्लीज थैंक यू सर, थैंक यू। मुझे तो बोलना ही है। ओके, शैल वी स्टार्ट? कैन यू हियर मी? इसकी जरूरत है, वी नीड दिस और नहीं, लेकिन रिकॉर्डिंग नहीं होगी ना। सो आई वुड स्टार्ट द सेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर very grateful for school management, principal ma'am, staff members, director sir, chairman, because we are very grateful for them because they have given chance to speak in front of you all. Because if you were not there, whom would we have discussed this concept? So you all people are very important. उन्होंने मौका दिया, that's why we are grateful, and you are sitting here, that's why we are we are grateful for you people. Before I start the session, I would start with my introduction. I am Vipul Sharma, still I am Vipul Sharma. As sir said, as far as my profession is concerned, I am a corporate trainer of new mindset from Netherlands organization Gold Inspiration. Apart from this, I am a nutritionist, and there is a subject called quantum physics which is used in NASA. I deliver lecture for those people, especially for those people who got selected in civil services. But gradually I realized that I was delivering lecture for those who were already settled in terms of money and career. So to keep this thing in our mind, we started doing something new and introduced few product, like as ma'am said, sir said, DMIT or pineal gland activation. Definitely we would cover all those stuff regarding your studies and all. But before I start the session, and definitely we would share, but before that I would love to share this experience of mine when I was in school time, like when it comes to my school time, when I was in 8th standard, probably in 9th standard. I tell you, the people like, अच्छा कितने कौन सी क्लास के बेटा, because I had no idea. मैं जब आया था, I had no idea the people those who are sitting here 6th 7th 8th 9th, who's I didn't get, ma'am, pardon? 6th to 12th, 5th to 12th. Is there anyone? कौन है 5वीं क्लास का 5th स्टैंडर्ड का? Is there anyone? अच्छा, ये टिंगे मिंगे इधर बैठे हैं. Okay, so okay, all right. So 12th का कौन है? ओके, उधर वाले वो वीर बैठे हैं उधर, ठीक है. सो हाँ, हेलो, मैं समझ गया भाई, सेलिब्रिटी वाली फील आपको भी ले आते हैं स्टेज पे ना, ये स्टाइल से, द वे ही इज डूइंग दैट. अरे वेरी गुड यार, फिर तो आपसे तो बात करेंगे भाई, मैं आप ही की बिरादरी का हूँ, ठीक है ना, डोंट वरी दैट. सो मिस्टीरियस पर्सन, कोई इशू नहीं है भाई, मैं भी ऐसा ही था. सो See, as I said, I would share my experience because मैं जब क्लास में था 8th या 9th में, God knows, till 10th और 12th, तब तक तो 10th तक मान लो हम लोग जो, because we are residing in जयपुर राजस्थान, तो वहाँ मारवाड़ी में एक वर्ड बोलता हूँ, ऊत प्रकृति के, मार कूट करने वाले, लड़ाई झगड़े वाले बच्चे, we were like that. ये क्वांटम फिजिक्स नासा वासा तो बहुत बाद में आया है, but before that we were like that. हम आप ही के जैसे भाई, आपकी जो तारीफ हो रही है, I was like that. So डरने की जरूरत नहीं है भैया, एंड ऑफ द डे यहाँ तक पहुँच सकते हैं. So मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं, इसीलिए मैंने आपसे पूछा था कि कौन सी क्लास के बच्चे पीपल आर सिटिंग हियर, एंड आई टेल यू द मूवमेंट. जैसे ही हमारे पीटीआई सर ये बात कहते थे, लाइक जैसे भी अभी आप लोग यू आर सिटिंग हियर इन फ्रंट ऑफ मी, एंड
हमारे टाइम में भी स्कूल मैनेजमेंट दे यूज्ड टू इनवाइट पीपल लाइक वी हैव कम हियर, ठीक है, इन ऑर्डर टू शेयर द एजुकेशनल पार्ट एंड ऑल। तो हमारे टाइम में भी बुलाया जाता था, ऐसे स्पीकर्स आते थे लाइक वी हैव कम हियर, ऐसे हमारे टाइम में भी आते थे। हमारे टाइम में जादूगर टाइप लोग आते थे, ऐसे भैया पढ़ाने वढ़ाने वाले थोड़े कम आते थे। तो द मोमेंट जैसे ही हमारे सर आते ना, लाइक वो प्रेयर ग्राउंड में सारे बच्चे बैठे हुए हैं, वो प्रेयर वेयर हो रही है एंड ऑल, और सडनली सर कहते सारे नीचे बैठ जाओ, और द मोमेंट द पर्सन सेड सारे नीचे बैठ जाओ, मेरे दिल से एक ही बात निकलती थी, थैंक गॉड शुरू के 2 पीरियड निकले। क्यों? रीजन बता देता हूं। सी टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू पीपल, मैं कोई बिल्कुल झूठ नहीं बोलने वाला हूँ, सच्ची सच्ची बात बताऊंगा। बहुत करियर चेंज हुआ, लाइक एक्सट्रीम वी गॉट सक्सेस। लाइक अभी इंडिया के बाहर हम लोग काम कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में, यूएस में, नासा में रिकॉग्नाइज किया, तो वी डिड सो मेनी थिंग्स, डेफिनेटली वी वुड कवर। बट इंटरेस्टिंग पार्ट, इनिशियल डेज में मेरे को पढ़ाई बिल्कुल पसंद नहीं थी, और जो ये जो बोला ना शुरू के 2 पीरियड निकले, मुझे दुनिया के 2 सब्जेक्ट सबसे गंदे लगते थे। एक कौन है अब मैथ, तो वो तो एक अलग मैटर है ना, मैं बता देता हूँ, बिल्कुल सही है। पहला तो सबसे बेकार सब्जेक्ट मुझे लगता था वो था मैथमेटिक्स, गणित, मैथ वो जो भी होता है, मैथमेटिक्स दुनिया का सबसे बेकार सब्जेक्ट। क्यों? अरे मतलब 6th में आ गए ना, 6 के बाद तो अलजेब्रा भी चालू हो जाती है, a + b a - b a² b² ए भाई क्या a³ b³ क्यों करूं किस लिए करना है? अच्छा 10th में प्रोबेबली लाइक हम लोगों ने तो सभी तरह की पढ़ाइयां करी है, IB AB CB सब करा था। आप बताओ, आप लोगों के ट्रिग्नोमेट्री आ गई क्या? 10th वाले प्राणी का 9th 10th में आ जाती है यार ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स में, है क्या कोई 10th का प्राणी यहाँ बैठा हुआ? इज देयर एनीवन? अब यार ट्रिग्नोमेट्री 10th का कौन बच्चा है यहाँ पे? 11th 10th का 9th का? ओके, नो इश्यूज, कोई बात नहीं, गणित तो फिर भी पढ़ी होगी, ट्रिग्नोमेट्री नहीं तो मैं डिफरेंशियल स्केल्स को इस पर बात करता। पर मैं ईमानदारी से आपको बताऊं, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट ही बेकार था यार, ठीक है ना, ठीक है ना, किसी कंटेंट में क्या बात करूं मैं, मुझे दुनिया का सबसे बेकार लगता था। एंड सेकंड वाज द मोस्ट फैक्टर इंपॉर्टेंट, दुनिया का दूसरा सबसे गंदा सब्जेक्ट सोशल साइंस, बेकार है ना। अदरवाइज मत लीजिएगा, पीपल आर सिटिंग हियर सेंडिंग हियर टीचर्स एंड ऑल, डेफिनेटली वी डेफिनेटली लव द सब्जेक्ट। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है मिडाइवल हिस्ट्री, मुझे बहुत पसंद है। लेकिन जमाना था, ईमानदार यू वोंट बिलीव, मैं तो मेरा 10th में प्लान था भाई, लाइक व्हेन आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड, आई मीन मैं आई यूज्ड टू थिंक अबाउट लाइक प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, देश का प्रधानमंत्री बनेंगे। ईमानदार से बता रहा हूँ, ये सिंगल पॉइंट एजेंडा था, भारत का प्रधानमंत्री बनूंगा। लेकिन इसलिए नहीं कि कोई देश का उत्थान करना है, डेवलपमेंटल है, कुछ नहीं ऐसा, सीधा सिंपल था, जिस दिन बना ना इन दोनों सब्जेक्ट को इस देश से तो निकाल दूंगा। क्यों? मेरे जैसे और भी तो होंगे ना यार, है? तो मैं ये सोचता था निकालो इनको इस देश से, ठीक है। खैर, पीपल आर सिटिंग हियर एंड एज फार एज लाइक यू आर सिटिंग एंड यू है, अरे सी आई टेल यू, अरे देखो और कोई भी प्राणी यार, अभी और भी आने, पीपल आर कमिंग, ठीक है, लेट देम कम, लेट देम कम, लेट देम कम, लेट देम कम, आ जाओ भैया, यहाँ तक चढ़ जाओ, मुझे तो एक जगह खड़ा होने के लिए चाहिए। थर्ड क्वेश्चन, इसको है ना आई चेंज दैट, है ना, मैं जो है एक क्वेश्चन और पूछूंगा, और प्रोबेबली सोच रहा हूँ कि 2 क्वेश्चन के बाद में पहले एक छोटा सा काम करवाता हूँ, क्योंकि आई वाज एक्सपेक्टिंग, अरे आ गई, थैंक यू विनी सर भी आ गए, एक छोटी सी एक्सरसाइज करवाता हूँ पहले, उसके बाद में रेस्ट 4-5 क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, देखते हैं कितने हमसे रिलेट होते हो। एंड द वे आई लाइक आई एम डूइंग इज, थोड़ा आप लोगों से कम्युनिकेट कर पाएं, कंफर्ट जोन में रहोगे, इजीली बात हो पाएगी तो इजी रहेगा। मैं गुरु गंभीर होके दूरदर्शन की संध्या में आपका स्वागत है, तो आप लोग कर नहीं पाओगे ना, कहोगे क्या है, बीमारी आके खड़ी हो गई है ना, तो है ना, इसलिए ना हमारे पास ऐसे बहुत सारे टी-शर्ट्स हैं जो अलग अलग नाम से लिखे हुए हैं। ऑरा क्या है? AURA स्टैंड्स फॉर ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, अबू धाबी, है ना, एंग्लो। अब ये एंग्लो क्या है? इंग्लैंड में ये वर्ड पहले एंग्लो इंडियन, एंग्लो ही चलता था, अभी तो बाद में इंग्लैंड हो गया, लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट की जो कहानी है ना वो एंग्लो से ही चलती है। सो उन सब में ए है, ठीक है ना। यूनिक स्टैंड्स फॉर यूनिकनेस, लाइक बहुत यूनिक कोई चीज़ है। रिज एनालिसिस, उस पर तो हम बात करेंगे, तो इसलिए ये AURA बना, क्योंकि हमने जो कंट्रीज कवर की है उसमें ऑस्ट्रेलिया है, अबू धाबी, यूरोपियन कंट्रीज़ के अलावा जो इधर अपन अगर अरबियन कंट्रीज़ में जाते हैं UAE, तो उसके कारण है ना, वहाँ हमने अबू धाबी में शुरू किया इसलिए A नाम से ले लिया। उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया के बाद अमेरिका का नाम है इसलिए उसका A आ गया, और फिर इंग्लैंड का भी किस्मत से जो है एंग्लो वर्ड आया, उसमें भी A आया। तो हमारे लिए जितने गवर्नमेंट के हमने, बिकॉज वहाँ पे ट्रेड लाइसेंस ले रखा है, हम लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ बैठे बैठे वहाँ जाके काम करना होता है, जब वहाँ का ट्रेड लाइसेंस वहाँ की गवर्नमेंट के साथ करते हो। सो मोर और लेस द थिंग इज उन सब में A है, इसलिए वो A यहाँ पे लग गया, ठीक है।
अदरवाइज उन कंट्रीज़ के अंदर बता सकते हैं, जैसे यूएस की बात करें तो कैलिफोर्निया, तो आपको यहाँ पे कैलिफोर्निया लिखा हुआ मिल जाएगा, है ना, तो वो कैलिफोर्निया है। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया के अंदर मेलबर्न है, ऐसे ही अगर आप यूएई में जाते हो तो अबू धाबी है। इस तरह से उनके अंदर जैसे टी स्टेट उनका नाम भी हम लोगों ने लिख रखा है। सो ये तो ओरा की बात है। टीम 360 क्या है? टीम 360 इज ऑल अबाउट 360 डिग्री चेंज। आप लोगों ने कंपास वो डी देखा है ना, कैसा होता है, ऐसे घूमता है ना पूरा, ठीक है ना, तो वो 180 होता है और वापस घूम के आ जाए एज इट इज, दैट इज कॉल्ड 360। इज ऑल अबाउट होल ट्रांसफॉर्मेशन, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल, अंदर और बाहर से पूरी तरह से चेंज होना ना। इंसान वही है लेकिन पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो गया। अगर इसको और अच्छे शब्दों से कहूं तो नरेंद्र से विवेकानंद बनना इज कॉल्ड होल ट्रांसफॉर्मेशन और 360। नरेंद्र नाथ आपके जैसे ही थे लेकिन पूरी दुनिया उनके चरण छूती है। क्यों? क्योंकि पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो गए थे जब भी अपने गुरु से मिले, एनऑल एनऑल एनऑल, बट पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो गए। और विवेकानंद बनना, नरेंद्र से विवेकानंद बनना इज कॉल्ड 360 डिग्री चेंज, ठीक है। नाउ द सेकंड पॉइंट, यस, ओके, सो अभी कवर हो गया, क्लियर हो गया ना। होल ट्रांसफॉर्मेशन, इंटरनल एक्सटर्नल, स्वामी विवेकानंद कुछ तो याद रह जाएगा ना। दैट्स व्हाई वी डिड दिस, वी हैव रिटन 360। इसलिए 360 हमारी किताब पे, कंपनी के मेरी 2 कंपनियां हैं, पब्लिक कंपनी भी है, प्राइवेट कंपनी भी है, सबका नाम 360 है। बुक्स का सबका नाम 360 होता है, वो इसी रीजन से है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। व्हेन इट कम्स टू द क्वेश्चन दैट वी वर टॉकिंग अबाउट, सो आई वुड आस्क फ्यू क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन आई एम गोना आस्क यू, एज आई सेड, वो पढ़ने वढ़ने वाले 2 क्वेश्चन तो हो गए थे। थर्ड क्वेश्चन जो है मैं आपसे पूछता हूँ, वैसे कम बच्चे रिलेट करते हैं, या चलो उसको बाद में पूछेंगे, पहले सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं। ऐसा भी कोई है क्या यार जो यहाँ पर बैठा हुआ है और लाइक मेहनत तो बहुत कर रहे हो, लाइक यू हैव गॉन थ्रू ऑल द स्टफ इन द बुक एंड ऑल, जो भी कुछ किताब में सब कुछ यू हैव गॉन थ्रू बाय हार्ट, कंठस्थ याद कर लिया, बट व्हेन इट कम्स टू योर एग्जाम, सपोज यू आर सिटिंग इन एग्जामिनेशन और द क्वेश्चन पेपर इज इन फ्रंट ऑफ यू एंड एट द टाइम ऑफ आंसरिंग द क्वेश्चन, आधे आंसर लिखने के दौरान यू फील लाइक दैट आधा याद है आधा भूल गए, ठीक है, या फिर 70% याद है 30% भूल गए। ऐसा किसी के साथ होता है क्या? अरे टूटे हाथ मत खड़े करो, तरीके से करो, होता है ना। तो अपन कौन से विवेकानंद है जो 100% याद हो जाएगा, ठीक है ना। चलो चेंज करते हैं। अच्छा, अगर ऐसा होता है ना तो फिर ये भी होता होगा, प्रोबेबली द चांसेस आर देयर, लाइक सपोज यू आर सिटिंग इन एग्जामिनेशन और द क्वेश्चन पेपर इज इन फ्रंट ऑफ यू, एट द टाइम ऑफ आंसरिंग द क्वेश्चन, द फर्स्ट क्वेश्चन यू हैव अटेम्प्टेड, आपने पहला प्रयास कर लिया, कंप्लीट कर लिया, दूसरा कर लिया, तीसरा कर लिया, चौथे पे गाड़ी अटक जाती है, और यार इसका क्या आंसर है यार, वो याद नहीं आता है कम वक्त। वो कब याद आता है? जब आप क्लास के बाहर जाते हो और आंसर क्लिक में, अरे यार मैंने तो वो लिख दिया। ऐसा किसी के साथ होता है क्या? या फिर साथ वाला बताए ये नहीं था, इसका ये था, है ना, होता है ना, इट्स हैपनिंग विद यू। अरे आप लोगों के साथ होता है, मैं तो बाहर जाके बात ही नहीं करता था, रीजन बता दूंगा कि मालूम है कुछ लिखा तो है नहीं, ठीक है ना। अच्छा, एक बात और बताता हूँ, इफ इट इज हैपनिंग, एक बात और बताता हूँ, देखो एक बात और बताता हूँ, इसके आगे वाला क्वेश्चन भी लूंगा, लेकिन इस समय चूंकि ये बात हुई है ना, बाहर जाके सपोज जन फ्रेंड्स एंड ऑल से बात करते हैं, और बच्चे करते हैं पेपर देने के बाद डिस्कस करते हैं कि इसका ये था, इसका वो था, पता नहीं क्या था, लेकिन जो भी चर्चा करते हैं, मेरे टाइम में भी होता था, लेकिन मैं एकदम आगे हूँ, है ना। मेरे केस में क्या होता था भाई, मैथमेटिक्स में तो जनरली पॉइंट्स में, डेसिमल्स में आंसर आते हैं ना, 10.1, 13.2, ऐसे भी आंसर्स आते हैं, आते नहीं आते हैं, आते हैं ना। तो बच्चे भाई साहब पेपर दे के आते हैं और लिखा, मान लो किसी का आ गया 13.66 आंसर, बाहर जाके बात करेंगे, इसका 13.6 कैसे आ गया, 12.38 था, तूने गलत निकाला है। अब वो बेचारा यूं परेशान है, 13.6 नहीं, वो बहस कर रहे हैं आपस में। तीसरा कहता है ही नहीं भाई, 9.22 है आंसर। तो मैं बैठा बैठा खड़ा देखता हूँ, भाई मेरा 1100 कैसे आया क्योंकि मैं तो 1000 से नीचे नहीं उतरता था, ठीक है। बट द जोक्स अपार्ट, ये इट वाज लाइक, मेरे तो बहुत होता था, पता नहीं आप जैसा कोई होगा मेरे जैसा। मेरे यार ये सीन अलग ही होते थे, पॉइंट में कभी आंसर आते ही नहीं थे, होता है। और कई बार तो मैं थ्योरम ही बदल देता था खैर आगे लेते हैं, अगला क्वेश्चन पूछता हूं। अगर आपके साथ में ऐसा होता हो तो प्लीज 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 मुझे बताना। ऐसा कोई बच्चा है, बिकॉज है ना, लाइक सीनियर्स आर ऑल्सो सिटिंग हियर, बच्चों का तो मैं आई कैन अंडरस्टैंड देम, लेकिन अभी आप बड़े लोग हो और प्रोबेबली सी टाइम हैज चेंज, बहुत समय बदल गया यार, हमारी पढ़ाई में और आपकी पढ़ाई में रात दिन का अंतर है। और तो हो सकता है कि आप रिलेट ना करें, पर करो तो प्लीज हाथ खड़े करना। ऐसा है बिकॉज व्हेन आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड आई यूज्ड टू अवॉइड सम क्वेश्चंस, दोस वर टू टफ टू लर्न, आई यूज्ड टू अवॉइड देम कि यार भगवान ये पेपर में आए तो ठीक रहे, भगवान ये ना आए, क्यों, पहले किताब याद नहीं हो रही, ऊपर से ये और कठिन है, और फिर साथ वाले कोई हीरे होते हैं जो ये, अरे ये वाला बहुत कठिन है, ये तो आएगा ही आएगा, तू पहले ही परेशान हो रहा, तू और बोल ले, ठीक है ना। तो अब ऐसे में ना, मैं तो वैसे ही हाथ जोड़ रहा हूँ कि भगवान ना आए तो ठीक रहे, और जिन जिन कमबख्तों को मैं छोड़ के जाता हूँ वो पेपर में जरूर आते हैं। ऐसा किसी के साथ होता है क्या? अगर होता है अरे वाह, सारे अपनी बिरादरी के, कोई चेंज नहीं है, मेरे को लगा समय बदल गया होगा। ओके, अच्छा अगर ऐसा होता है ना, तो आप में से कितने बच्चे हैं जो ये चाहते हो, प्लीज मुझे टेल मी, है ना, मुझे बताना कितने बच्चे, द पीपल दोज आर सिटिंग हियर, इफ यू रिलेट, ऐसा किसी के साथ होता है, या ये मान लो चाहते हो, चाहना, योर डिमांड, योर वांट्स, डिजायर, जो भी मान लो, कितने हैं, और ईमानदारी से बताना यार, कितने हैं जो यहाँ बैठे हैं और ये चाहते हैं कि
कि अपनी किताब को, थैंक यू यार, थैंक यू सो मच, आप किताब को हाथ में लो, ऐसे किताब को हाथ में लो, इधर से फ्लिप करो, पन्ने फड़फड़ाओ, फ्लिप करो तो सारी थ्योरी याद हो जाए, ठीक है। अरे सुन तो लो रे बाबा, इधर से फ्लिप करो तो सारे ग्राफ याद हो जाए। कितने ईमानदारी से बताना मेरे को, चाहते हो ना, पर ये कठिन काम है, इस टू टफ, बहुत कठिन है। बताता हूँ सिंपलेस्ट फॉर्म, देखो इसमें तो मेहनत लगेगी भाई, किताब को उठाओगे यहां तक लाओगे भाई, पन्ने हाथ में दर्द हो जाएगा, कल ने कोई पन्ने फड़फड़ाए आपके हाथ में लग गई तो भाई साहब दर्द हो जाएगा। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके चलते हैं, एकदम सिंपल करते हैं। किताब हाथ में लो, कोई सी भी ले लो, एसएसटी, साइंस, बायो, मैथमेटिक्स, जो पसंद आए, उठाई किताब हाथ में ली और ऐसे करना है बस, हाँ है ना। अब कितने चाहते हो ये बताओ, ये तरीका अगर चाहोगे तो बताऊंगा, चाहते हो ना, तो एक चीज तो क्लियर है कि मेहनत तो कोई से नहीं करना चाहता, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, खुला कहो, कोई दिक्कत नहीं है। सी टाइम हैज गॉन, टाइम हैज गॉन, टाइम हैज गॉन। वो बाबा आदम का जमाना गया, जब लेके बैठ जाते थे ना किताब से, गड़ रट रहे, टाइम हैज गॉन। अभी जापान में ऐसे ही पढ़ाई होती है, जापान के बच्चे बहुत आगे, अपने सब बहुत कमजोर देश था भाई, हिरोशिमा नागासाकी, आज तक उनके नाम की कहते बम गिर गया, ये हो गया वो गया, वो बहुत आगे चले गए। अमेरिका में भी उनके बनाए प्रोडक्ट चलते हैं, वो एक्सट्रीमली दे आर सक्सेसफुल। हमारे को तो ट्रेन देके जा रहे हैं, सीधी सी बात है, बहुत सक्सेसफुल है वो लोग। क्यों है? ये रीजन है, उनके बच्चे ऐसे लेके नहीं बैठ जाते हैं किताबों को, बस बुक को स्मेल करते हैं और पूरा पूरा जिस्ट याद करके बता देते हैं किताब का सार क्या थी। डोंट नीड टू ओपन दैट बुक, स्मेल किया, सार बताया। जब हमें पहली बार समझ में आया ना, तो मैं तो पागल है क्या, लिटरली बताऊं, क्योंकि मैंने तो कभी देखा ही नहीं था, तो मेरे गले ही नहीं उतरी ऐसा हो सकता है क्या? और हो सकता है तो मैं तो दुआएं दे रहा था, भाई तू इतने दिन कहाँ था, हमें मिल जाता, हम यूं ही गिरते थे बैठे बैठे, है ना। आज आपके साथ में वो कंसेप्ट हम शेयर करने वाले हैं। कुछ बच्चे आपके ऐसे हमने तैयार भी किए हैं, है ना, वो मैं आपके साथ कंसेप्ट शेयर करूंगा। पर पहले मुझे बताओ कि कितने हैं जो ये चाहते हैं कि है ना ऐसा लेवल आप लोगों का आ जाए? सारे चाहते हो ना? तो अभी आपके साथ में 2 कंसेप्ट शेयर करूंगा और दोनों कंसेप्ट से आपका पर्पस सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। द फर्स्ट क्वेश्चन, चलो मैं है ना ये ले लो सर, इसकी जरूरत नहीं। जो पहला सब्जेक्ट है ना जिसका विनीत सर ने जिक्र किया, मैं बता देता हूं, जो डीएमआईटी वर्ड बोला था उसका अपग्रेडेड वर्जन, अपडेटेड वर्जन हम लोग लेके आए, जिसका नाम रिजल्ट एनालिसिस है। वो पहले वाला भी हमारा ही था, ये भी हमारा ही है। जैसे होता है ना, पहले आईफोन 4 आता था, अभी आईफोन 13 प्रो मैक्स, अब तो 14 आ गया, तो वो अपडेट तो होता है। अभी थोड़ी 14 किसी और का है और 10 किसी और का होगा, XR किसी और का होगा, वो एक ही ब्रांड है, तो ये सब हमारे ही प्रोडक्ट है, ठीक है। जो फर्स्ट प्रोजेक्ट है उसका नाम है रिज एनालिसिस। बोलो रिज एनालिसिस। अब ये रेज क्या चीज है? ये हाथ पे जो रेजेस होती है ना, ये नहीं, ये तो ज्योतिष नॉलेज, जो हाथ को कट करोगे ना, जो अपन इंप्रेशन लेते हैं, लाइक आधार कार्ड पे आप लोगों ने अंगूठा लगाया होगा, तो जो रेजेस आई हुई ना, दिस इज कॉल्ड रेजेस, ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं, आपके हाथों के फिंगरप्रिंट लेते हैं। दोनों हाथों में कितनी उंगलियां हैं? 5, 10, अरे 8 है उंगलियां, तो अंगूठे हैं 2 तो, ठीक है ना। तो 8 अंगुलियां और 2 अंगूठे, हर एक के 3 प्रिंट के हिसाब से 30 प्रिंट होंगे, जिसके बेसिस पे आपकी एक 58 पेज की रिपोर्ट बनेगी, जो लाइक बाहर से लाइक वैज्ञानिक उसकी स्टडी करेंगे आपके प्रिंट की, और वो रिपोर्ट बना के हमारे को भेजेंगे। उसके बेसिस पे हम आपके पेरेंट्स की और आपकी काउंसलिंग करेंगे, जिसके बेसिस पे आपको 5 बातें पता चल जाती है। पहली, आपका ब्रेन बना किस चीज के लिए, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, बिजनेसमैन, जिस किसी के लिए बना है, रिपोर्ट में आ जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप बातों को मन में तो नहीं रखते, स्टेज पे जाने से तो नहीं डरते, लैंग्वेज बैरियर तो नहीं है, लाइक 70% पीपल ऑफ इंडिया दे आर नॉट दैट मच कंफर्टेबल टू स्पीक इंग्लिश, तो प्रोबेबली चांसेस आर देयर कि अंग्रेजी से किसी को प्रॉब्लम है, तो वो भी एक प्रॉब्लम है, चाहे लैंग्वेज बैरियर किसी भी तरह का हो। अपार्ट फ्रॉम दिस, उसके अलावा आप बातों को मन में तो नहीं रखते, स्टेज पे जाने का तो डर नहीं है किसी को, वो भी आता है, डिप्रेशन या सुसाइड का शिकार तो नहीं है, ऐसा कुछ भी चैलेंज है तो रिपोर्ट में निकल कर आ जाता है। इवन लैंग्वेज तक का पता चल जाता है कि लैंग्वेज बैरियर तो नहीं है। मैं मेरा बताऊंगा, मेरे तो इशू ही दूसरे थे, बताऊंगा आपको कि हाँ, अरे हंस क्या रहे हो यार, मैं ऐसा लिटरली बता रहा हूँ, बट है ना, यू नीड समवन टू गाइड यू, और समवेयर यू नीड टू है ना अंडरस्टैंड दिस। या तो कोई व्यक्ति मिले जो आपको गाइड कर दे, तो सबके पास पोटेंशियल निकल जाता है, लेकिन थोड़ी सी वीकनेसेस उन्हें दूर करने की जरूरत है। इस टेस्ट से सब पता चलता है, इवन ये तक पता चल जाता है कि आपका लेफ्ट वाला ब्रेन ज्यादा चल रहा है या राइट वाला ब्रेन चल रहा है। अब प्रॉब्लम पता है क्या है, लेफ्ट वाला ब्रेन और राइट वाला ब्रेन, है ना। अभी आधों को तो यही पता नहीं होता है कि हमारे पास में 2 ब्रेन है, लेफ्ट वाला या राइट वाला, है ना। So as far as psychology is concerned, very good. As far as psychology is concerned, we are having 2 brain, left and right. So when it comes to left brain, if you are left brain dominated person, that means you are good enough for engineering, medical, IAS and all. आप पढ़ाई के लिए बहुत अच्छे हो, पढ़ाई, है ना। तो पूछ लेते हैं बेटा, व्हाट्स योर गुड नेम? वैष्णवी। आपको क्या लगता है कौन सा वाला पार्ट वर्क कर रहा है ज्यादा? मे बी लेफ्ट, कंफर्म नहीं है, ओके। इस बच्चे से पूछ लेते हैं, हाँ बेटा क्या लगता है कौन सा ब्रेन ज्यादा वर्क कर रहा है? सर लेफ्ट नहीं, ब्रेन कौन सा वर्क कर रहा है? लेफ्ट, ओके। अरे भाई कान में क्यों कुरकुर कर रहे हो, लो इधर आओ। क्या नाम है आपका? सोहम। अरे वाह यार, सोहम तो बहुत बढ़िया नाम, मीनिंग पता है इसका सोहम का? तो यूं ही चल रहा है नाम। अच्छा चलो सोहम, ये मुझे बताओ कि ना आपका कौन सा वाला ब्रेन ज्यादा चल रहा है? वैसे क्वेश्चन कठिन है आपके लिए, नाम नहीं पता इसलिए। हाउ डू यू नो? ऐसे ही टाइम पास के लिए बोल दिया, चलो ठीक है ना।
ए भाई मुस्कुरा रहे हैं यार, बड़े हैंडसम लग रहे हो, आप ही से पूछ लेते हैं। अरे यार कहाँ आ गया ये अच्छा, क्या लगता है आपको कौन सा वाला पॉट वर्क कर? हाउ डू यू नो? लाइक आइडिया ही है ना, एज सच कंफर्म नहीं हो, है ना? अरे भाई साहब ये देखो रामदेव बैठा है, ठीक है ना? हाँ भाई रामदेव जी बैठे हो ना, खुले पैर वेर यार, बड़ी स्टाइल से प्रॉपरली बैठो। क्या लगता है आपको कौन है ना, कौन सा वाला पार्ट वर्क कर रहा है? हाउ डू यू नो? उसका देखा था सो ये बोला भाई, इसको कॉपी कर लिया ऐसे टाइम पास के लिए। सी दिस इज अ प्रॉब्लम, और ईमानदारी यू वोंट बिलीव, आपकी गलती नहीं है भाई। क्या हुआ, जुकाम उखाम हो रही है क्या? ओके सो अरे भाई तो हंस, या तो हंस ले, हंसे हुए पे उंगली कौन लगाता है यार? चलो अच्छा मुझे ये बताओ, आपका कौन सा वाला पार्ट ज्यादा वर्क कर रहा है? सर लेफ्ट, फिर वही वाली बात। अच्छा चलो, अच्छा हाउ डू यू नो? हंस ले पहले, फ्री हो ले, है ना? अच्छा ईमानदारी से एक बात बताऊं, एक बार है ना, अभी ऐसे सेशन होते हैं, मैंने कल भी जिक्र किया था, तो मैं स्कूल का नाम कोट नहीं करूंगा। सो बेक स्कूल में सेमिनार किया, सेमिनार के बाद पेरेंट्स आए, पेरेंट्स वर सिटिंग देयर, स्टूडेंट्स वर सिटिंग देयर, आई जस्ट आस्क्ड द क्वेश्चन, द सेम क्वेश्चन आई आस्क्ड। मैंने कहा क्या लगता है बेटा आपको कौन सा वाला ब्रेन आपको ज्यादा लगता है? तो वो भी भाई कोई यार आइंस्टीन बैठा था, 2 मिनट के लिए सोच रहा था कि शायद कंफर्म, मेरे को भी लगा कोई कंफर्म आंसर देगा। आई थिंक उधर से पिताजी चिल्लाए पीछे से, अरे सर छोड़ दो बैठे रहने दो इसको। अरे मैंने कहा इसको बताने दो। अरे नहीं रहने दो सर, रहने दो, क्या बताएगा, छोड़ो आप। अरे मैंने कहा यार बताएगा क्या पता। अरे तो होगा तो बताएगा ना, तो उनको तो ऊपर वाला है ही नहीं, तो भाई ऐसा तो नहीं हो सकता, होगा तो सही, बट वी हैव नो आइडिया कि कौन सा डोमिनेटिंग कंडीशन में। सो इट वुड कम विद दैट रिपोर्ट। ये सारी चीज रिपोर्ट से पता चलती है, न केवल। अच्छा आप में से कई होंगे जिनको प्रोबेबली चांसेस आर देयर, लाइक यू विल फील लाइक, हो सकता है किसी को मैथमेटिक्स से इशू हो, है ना, किसी को हिंदी से भी इशू हो सकता है, किसी को इंग्लिश से इशू हो सकता है, किसी को साइंस से इशू हो सकता है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट, है ना, जरूरी नहीं है पूरी पढ़ाई से हो, सबके साथ है। आपको ईमानदारी की बात बताऊं, एक क्योंकि इस बोर्ड पे जगह नहीं है, मार्कर कहाँ गया, तो एक चीज करके दिखाता हूं, मेरे साथ होता था, मजा आएगा आपको। जब मैं मैं है ना, कहते हैं ना घाट घाट का पानी पिया, मैं सारी तरह के स्कूल्स में पढ़ा हूं, क्योंकि मैं कहीं टिका नहीं। क्यों नहीं टिका? मेरी प्रकृति की वजह से, है ना। जैसे वो भाई बैठा ना, इसीलिए कह रहा हूं अपन एक ही बिरादरी के, है ना। हाँ मस्त रहो। तो मैं बताऊं, कोई ना कोई कांड कर देता था मैं, वो मुझे बाहर भेजा जाता था, तो आधे से ज्यादा टाइम तो मैं क्लास के बाहर ही रहता था। और बताऊं आपको इंटरेस्टिंग बात, स्कूल के अंदर है ना, क्योंकि पहली बार लाइक बहुत टाइम तक, क्योंकि फादर मेरे सिविल सर्विसेज में रहे हमारे, तो हमारा ट्रांसफरेबल जॉब था, तो मैं क्या है कि है ना किसी स्कूल में ट्रांसफर हो जाता था साल भर में, तो ऐसे में है ना मैं हिंदी मीडियम, कभी इंग्लिश मीडियम, कभी किसी में जहाँ जैसे मिले वहाँ से सेटिंग बैठ जाती, तो कभी है ना कुछ होता, कभी कुछ होता। और मजेदार बात है कि घर वाले तो पूरी कोशिश करते थे इसको इंग्लिश मीडियम में डाला जाएगा, इसको अंग्रेजी सिखाई जाएगी, ठीक है, और मेरा अंग्रेजी में हाथंग, है ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को समझ ही नहीं आती थी। क्यों नहीं आती थी? क्योंकि ना वो एबीसीडी वाले भी कई लफड़े, छोटी एबीसीडी, बड़ी एबीसीडी, फिर वो कवर्सिव वाली ये और चलती है ना, तो मेरे को छोटी और बड़ी तो आती थी, उसके आगे वाला हेडेक आता नहीं था। और है ना, कोई प्लीज साउथ इंडियन हो तो अदरवाइज मत लेना यार। और हमारे को कोई मैनुअल मिशन स्कूल थी, उसमें वो साउथ इंडियन में आती, टक टक करके आती, टेक आउट योर कॉपीज, ठीक है, अब वो सब कॉपी बाहर निकाल लो, तो सब निकाल को खट खट निकाल के बैठे रहती थी, सुंदर सुंदर राइटिंग, और मेरे गले में आ जाती, क्योंकि अपन को तो लिखना आता नहीं था। और मैडम पता नहीं क्या चालू होती यार, घड़ 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 लिखती, घड़ 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 लिखती, और मेरे से लिखा नहीं जाता, क्योंकि मुझे तो मेरा ये लैंग्वेज वाला इशू वीक था, मेरे से लिखा नहीं जाता था। मैं कहा यार अब इसका क्या सॉल्यूशन निकालूं। और मैडम आके, आजकल तो क्या है कि आप लोगों पे लाइक बहुत समय बदल गया, और अच्छी बात भी है, ना तो कोई हाथ उठाते ना डांटते। हमारे टाइम में तो मूड फ्रेश करने के लिए भी कूट देते थे, ठीक है ना, कि घर पे मूड खराब है, लो इधर साफ कर दो, ठीक है ना। हमारा टाइम बहुत अलग था, और हर तरह से साफ होता था हमारे पे, लेकिन टाइम हैज चेंज, आप लोगों को तो बहुत डेलिकेटली ट्रीट किया जाता है। सो मजेदार बात देखो, मैं रोज कुटता था, ठीक है, मेरी कुटने की भी हद थी, क्योंकि कोई भी नहीं छोड़ता था मेरे को। तो मैं ये देखता है, तो दोस्तों ने मुझे गाइड किया, जो भाई कई बार दोस्त काम हो जाते हैं, बोले यार विपुल तू क्या सामने दिख जाता है, तो है ना हम देखते हैं यार, तेरे को रोज आए कोई मूड, मैडम भी तेरे को देखते रिपोर्ट देते, तो तू यार कोई आए, सर ने भी, सब अपने हिसाब से, कैपेसिटी के हिसाब से, तो तू एक काम कर, तू जगह बदल ले। और आई थॉट मेरे को भी बदलनी चाहिए जगह, तो मेरे को बोले कहाँ जाऊँ यार, बोले तू पीछे पीछे कोने में जाके छुप जा, ताकि दिखे ही नहीं तो कूटेंगे नहीं कि आज एब्सेंट होगा। मैं आइडिया तो अच्छा है, तो अपन शिफ्ट हो गए। और मैं ये चमत्कार मैंने 5th क्लास से शुरू कर दिए थे, ठीक है। मैं शिफ्ट होके 5th स्टैंडर्ड की बात है, मैं पीछे पीछे जाके बैठ गया, तो मैडम भाई टक टक करती हुई और ढूंढे कहाँ है ना, मैं अच्छा आया नहीं क्या। तो कई तो खिलाड़ी होते हैं ना, उनसे मुझे बड़ी चिढ़ थी, मैडम ये बैठा, अरे यार तुम्हें क्या प्रॉब्लम है ना। अब बच्चे करते हैं जैसे वो भाई कह रहा था, इसको है ना। अच्छा मजेदार बात, अच्छा अल्टीमेटली अपनी जगह चला ही गया, इसी लायक है, छुप के बैठा है पीछे कोने में, तू इसी लायक हो यार, फिर बाहर निकाल के कूट दिया, ठीक है। तो मैं कहा यार ये तो गड़बड़ है, तो फिर दूसरों ने ज्ञान दिया, आगे ही आगे बैठा कर,
क्यों? इंटेलिजेंट को कोई देखता नहीं है मैडम कि एकदम से नजर नहीं जाएगी, तो मैं एकदम आगे चला गया। मैंने कहा ये भी अच्छा तरीका है यार, कम से कम कटने से तो बचेंगे, तो आगे चला गया। इसके लिए मेरी स्कूल में शिकायतें हुई, मेरे घर पे शिकायतें पहुंच गई। आगे आगे आके बैठ गए, आगे आके बैठे, कहाँ है मैडम, ये रहा। अच्छा आज आगे बैठा है, मतलब खुद तो खराब है, इनको भी खराब करेगा। अरे यार मेरे को तो दोनों तरफ से। एंड ऑफ द डे व्हाट आई डिड, मैंने सॉल्यूशन निकाला। सॉल्यूशन ये था कि ये तो मानेंगे नहीं, ये तो करवा के छोड़ेंगे। टेस्ट तो बहुत दूर की बात है, कॉपियां तो भरूं। तो मैं क्या करता था, मैं यार इतनी जगह है ना भरी हुई है, वो सर आएंगे करेंगे या जो भी है, कहाँ गए, कॉल करने चले गए, तो है ना मैं है ना आपको बताऊं, मैं है ना मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, यहाँ देखना मैं क्या करता था। मैंने सॉल्यूशन निकाला, मैंने कहा ये ऐसे तो मानेंगे नहीं, कॉपियां तो काली करवाएंगे मेरे से, तो मैं कुछ तो रास्ता निकालू। तो मैं क्या करता, मैं ऐसे चालू हो गया, ठीक है ठीक है ठीक है, ऐसे ऐसे चलता। हाँ वो डॉक्टर वाली राइटिंग, झुक 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 झुक, पूरी कॉपी भर देता, ठीक है। और है ना मैम है ना, लाइक मैम कॉपियां लेके भी चली जाती, वो मैं दे भी देता, ले जा, ठीक है ना। मुझे भी पता अंदर तो कुछ है नहीं, ठीक है। मैडम जाती है, फिर मैडम आके कहती परेशान हो गए, विपिन का कॉपी चेक करने में तो 1 साल लगेगा। मैं सोचता था करती क्या चेक, मैंने लिखा तो कुछ है नहीं। बाद में भी होके आता था, टू बी ऑनेस्ट। बाद में आई डिड, मैंने बहुत चीजें सुधार ली, चेंज कर लिया, बट यार बहुत समय बदला है ना। इसीलिए ये टेस्ट आप लोगों के बहुत काम का है, क्योंकि मेरी ये जो लैंग्वेज वाली प्रॉब्लम थी ना, बहुत बाद में रिकॉग्नाइज कर पाया मैं और चीजों को सॉर्ट आउट किया। ये 5th स्टैंडर्ड में पता चल जाए, देखो उसको सारा कंसेप्ट पता है, वो मैडम वो बताएंगी। आप बता रहे हो नेक्स्ट वाला कंसेप्ट, यार आप बहुत पैशनेट बता रहे हो। चलो ऐसा है, द फर्स्ट क्वेश्चन या द फर्स्ट प्रोडक्ट जिसके बारे में जिक्र किया था मैंने, रिज एनालिसिस, उसमें क्या स्ट्रेंथ एंड वीकनेस दोनों आती है। तो स्ट्रेंथ में तो हम करियर सजेस्ट करेंगे, व्हेन इट कम्स टू वीकनेस वी आर हैविंग वन मोर प्रोजेक्ट इज कॉल्ड पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन। बोलो पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन प्रोग्राम, ठीक है। ये एक तरह का जो फिंगरप्रिंट टेस्ट है ना, उसमें आपकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस दोनों निकल कर आएगी। तो स्ट्रेंथ में तो हम करियर सजेस्ट करते हैं, तो वीकनेस दूर भी तो करनी पड़ेगी। तो उन वीकनेस को दूर करने के लिए वी हैव वन मोर प्रोडक्ट और प्रोग्राम इज पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन, जो कि जापान का है। इसकी खास बात क्या है, इसके अंदर हम आपको 10 डेज का वर्कशॉप कराएंगे। आज हम कराएंगे, वो एक तो करा के देंगे ताकि आपका रिजल्ट निकल जाए। उस 10 डेज के वर्कशॉप में हम बच्चों को बायनेरल बीट म्यूजिक सुनाते हैं, आपको भी सुनाएंगे 44 हर्ट्ज का, 20 ब्रेन जिम की एक्सरसाइज कराएंगे और डांस कराएंगे। उसका रिजल्ट है कि 10 क्लास के बाद आप इस लेवल पे आ जाओगे कि आपकी याददाश्त बहुत अच्छी हो जाएगी। 1 घंटे की चीज 15 मिनट में याद होना, लंबे समय तक याद रहना, अपनी एज से 3 साल मैच्योर होना, जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए उसकी कैपेबिलिटी आना। इन सब बातों के अलावा एक बहुत जबरदस्त टैलेंट, जिसके कारण हमें नासा में रिकॉग्नाइज किया, अमेरिका में रिकॉग्नाइज किया, बहुत सारे टीवी चैनल्स में। नाम डाल देना मेरा विपुल शर्मा, आपको 1750 से ज्यादा वीडियोस मिलेंगे, ईटीवी जीटीवी सोनी सबका मिलेगा। मैं हूं विनीत सर, हमारा पूरा डिटेल मिलेगा। सो उसमें क्या यूनिकनेस आ जाती है कि आप ब्लाइंड फोल्ड करने लग जाते हो। मतलब अगर आपकी आंख पे पट्टी भी बांधे तो आप बंद आंख से किताब पढ़ सकते हो, कलर पहचान सकते हो, मोबाइल के मैसेज पढ़ सकते हो, पैरों से अखबार पढ़ सकते हो। हर वो काम जो आप और हम खुली आंखों से करते हैं ना, हमारे बच्चे जो है बंद आंखों से करते हैं। ना केवल बंद, ये लेवल है कि स्मेल करके किताब को बगैर खोले बता देते हैं कौन से पेज पे क्या मिल, दे डोंट नीड टू ओपन दैट बुक। स्मेल किया और सार बताया या अंदर का पेज बताया। 10 दिन में तो आप सबका ये लेवल कर देंगे कि पूरी की पूरी बुक जो है ना वो पेज नंबर सहित याद हो जाए। जैसे मान लो कोई 6th का बच्चा है तो हो सकता है उसका पहला जो चैप्टर हो सकता है हिस्ट्री का, कौन सा होगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन, है ना। फिर हो सकता है दूसरा मेसोपोटामिया वाला आ जाएगा, है ना, तिग्रिस के बीच वाली नदी, है ना। उसके बाद में हो सकता है कौन सा आ जाएगा, इजिप्टियन सिविलाइजेशन आ जाएगा, है ना। तो फिर इजिप्टियन के बाद में कौन सा आ जाएगा, चाइना वाला आ जाएगा, है आंगों के ऊपर बना हुआ। तो हो सकता है उसके बाद में भाई वैदिक काल भी आ जाएगा, वैदिक सिविलाइजेशन आ जाएगा। हो सकता है फिर भगवान बुद्ध आ जाएंगे, महावीर आ जाएंगे, है ना। तो ऐसे 8 ही तो है ना टोटल, ज्यादा तो है नहीं। तो ये 10 दिन के अंदर पेज नंबर सहित आपको याद हो जाएंगे। ऐसे कि इफ समवन वुड आस्क यू व्हाट इज रिटन ऑन दैट पर्टिकुलर पेज एंड यू वुड लाइक आंसर लाइक कौन सा पेज नंबर 48 पे क्या है, अरे ये तो 41 से शुरू हुआ था, 48 पे तो खत्म हुआ इसका, ये जस्ट ऐसा लेवल आप सबका आ जाएगा। एंड विल डू दैट, हम ये ऐसा आपका लेवल क्रिएट कर देंगे, क्योंकि हमारे को ये सारी चीज पता है। लेकिन किंतु परंतु एक चीज ध्यान में रखना, हम किसी तरह का घर जाके चमत्कारी काम कर मत देना। नहीं घर जाके मम्मी आज तो भैया तो बंद आंखों को करके खेल कराया, तो भाई हमें जादूगर सम्राट नहीं है हम लोग, ठीक है ना। बायोलॉजिकली प्रूवन है, तो जो भी रिजल्ट आएगा वो बायोलॉजिकल प्रूवन है। एंड सेकंड वुड बी, इसकी आवाज चलेगी बेचारे की, है ना, है ना। बाकी है ना, बाकी जो है ना सेकंड जो है एक चीज, हम किसी तरह का भाग्य नहीं बता सकते और ना ही ज्योतिष। जैसे आगे है ना, जैसे है ना, जैसे मान लो भगवान ना करे किसी के साथ हो जाए, मान लो कोई किसी का एक्सीडेंट हो जाए, तो डॉक्टर्स क्या कहते हैं, मान लो पैर में बहुत दर्द हो रहा है, पीपल, है ना, फिर से गई, है ना। लोग ये कहते हैं कि डॉक्टर कहते हैं एक काम करो एक्सरे करा लो ताकि पता चल जाएगा कि क्या स्थिति है। तो डॉक्टर्स ने कहा एक्सरे करा लो। अभी एक्सरे कराया, उसमें आया कौन बोल
यार ऊपर वाला जैसे आकाशवाणी हो रही हो फील दे रहा है, ठीक है। सो है ना तो है ना, ये है ना, डॉक्टर्स कहते हैं एक्सरे करो, एक्सरे में एयरलाइन फ्रैक्चर, डॉक्टर ने कह दिया भैया प्लास्टर कराओ, तो अब प्लास्टर करना है एक्सरे करना डजंट मीन हमने कोई भाग्य देख दिया, ज्योतिष देख दिया, उस तरह से बायोलॉजिकली प्रूवन प्रोग्राम है। सो विल डू दैट, इससे रिलेटेड एक्सरसाइज भी कराएंगे, बट फर्स्ट व्हाट आई नीड इज पहले एक्सरसाइज कराऊं या है ना रोटेट इन क्लॉकवाइज मैनर, आपको इसको क्लॉकवाइज है ना बाहर घुमाना है, ऐसे अंदर के बाहर की तरफ, ऐसे अंदर से बाहर की तरफ, अंदर से बाहर की तरफ, ए भाई अंदर से बाहर, हाँ क्लॉकवाइज, वेरी गुड। मैम तैरना नहीं अपने को, है ना, यूं कर लो मुक्का, है ना, ठीक है। इतना समझाने के बाद भी दुनिया के किसी कोने में बैठे हैं भाई साहब। सो भाई उल्टा चल रहा है हाथ, क्लॉकवाइज, ठीक है। अभी हो गया, ये भाई क्लॉकवाइज का मतलब होता है दाएं हाथ को ऐसे अंदर से बाहर घुमाओ, ठीक है ना, ये नहीं करना है यार, ठीक है ना, ठीक है ना, ये ट्रक मोड़ोगे आप, है उल्टा नहीं घुमाना है, अंदर से बाहर, क्लॉकवाइज अंदर से बाहर। चलो आपका मैं आई गॉट योर पॉइंट। कईयों के मामले मुझे तो लगता है कि अभी तो पता कंफर्म है कि नहीं, गॉड नोस। सो ऐसे किया ना, अभी सेकंड क्या करना है, लेफ्ट हैंड लो, इसको जस्ट उल्टा घुमाना है, बाहर से अंदर की तरफ उल्टा, इसको उल्टा घुमा लो जैसे तुम घुमा रहे थे, बहुत इजीली। हाँ उसको दे मत देना, आवाज बदला निकल, मैं ऐसा ही था ना तो मुझे मेरे जैसे नजर आ जाते हैं, ठीक है। सो देयर आर टू थिंग्स, है ना, वो देखो, तो कम से कम राइट से तो करो, आरती करनी है तो यार, चलो ठीक है। सो अभी क्या करना है, राइट वाले को बाहर घुमाया था, लेफ्ट वाले को अंदर घुमाया था, अब दोनों काम एक साथ करो, एक बाहर एक अंदर, वो देखो स्लोली स्लोली, हाँ ये क्या, सी अच्छा अच्छा जस्ट वो देखो, भाई धीमे चलो ठीक है, आई गॉट योर पॉइंट, आपका एक्साइटमेंट मुझे समझ में आ गया। मैं एक बार स्टेज पे दिखा देता हूं, देखो एक बार आपको दिखा देते हैं कि हम कर कैसे रहे हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। देखो अभी क्या किया, ये मेरा हाथ है, राइट वाले को तो ऐसे बाहर घुमाया था, लेफ्ट वाले को ऐसे घुमाया था, अब दोनों काम एक साथ है, एक बाहर एक अंदर। एक वो देखो मैम कर रही है आपके, वो देखो, और आप हो कैसे खिलाड़ी हो, वो देखो मैम ग्रीन वाली कर रही है, वो देखिए, है ना, लाइट ग्रीन, बाबा क्या बोलूं, फिरोजी कलर। अरे इनको दूसरा एक्सरसाइज करानी पड़ेगी, कंट्रोल से मामला। अब पता चला भाई सारे एक जैसे ही हैं, ये पता नहीं कौन से रूप लेके बड़े थे। ओके सारे अपने हाथ ऐसे कर लो, कर लिए, अब जो सर बताए वैसा करो, बड़ी वाले फिंगर अंदर कर लीजिए, हो गया ये? नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, इसको ऐसे चिपका के रखना, चिपका लीजिए, ऐसे ऐसे ओपन नहीं रखना है, चिपका लिया, ऐसे क्लोज कर लिया, एकदम हटा लिया ना। तो अभी देखो क्या करना है, ये थंब ऐसे अलग करो, वापस जोड़ लो, हो गया। फर्स्ट फिंगर अलग करो, जोड़ लो, हो गया। लिटिल फिंगर अलग करो, जोड़ लो, हो गया। अब बिना किसी दिमाग लगाए, ये गैप नहीं आना चाहिए, बिना गैप आए आपको रिंग फिंगर अलग करनी है, करके देखिए, ऐसे ओपन नहीं होगा, हाथ ऐसे चिपका के नहीं रखोगे। कर लिया, ऐसा कौन साइंटिस्ट है बेटा, गैप आ रहा है, ये गैप नहीं आना चाहिए, यूं करो हाथ, सी आई शो यू, यू आर डूइंग गुड, बट आई टेल यू, आप ऐसे कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो, तो हाथ ऐसे करो, यूं मत रखो, हाँ अब करो, और गैप नहीं आना चाहिए, गैप नहीं आना चाहिए। देखो यू आर डूइंग, हाँ ये देखो, ये जो है ना, जैसा अभी इस वाली को खोलो, पहले तो अंगुली सीधी करो, सीधी इन द सेंस पूरा ऐसे यूं करो, हाँ ऐसे करो, करो मतलब पूरी फिंगर्स को ऐसे, इसको पूरा करो, यू टेढ़ा मेढ़ा मत करो, हाँ अब है ना, इसको मत छेड़ना, एज इट इज रखो, और इसको खोलो, इसको बगैर ही गैप किए, आ गया ना, खुल गया ना ये। अब ऐसे इसको करके देखो, यहाँ गैप नहीं आना चाहिए, आ गया ना गैप, टेढ़ी कर ली अंगुली, सीधी करो अंगुली, ये हो जाता तो मैं कराता ही क्यों।
ओके, चेंज करते हैं। आपका एक्साइटमेंट मेरे समझ में आ गया। आपके, हाँ भाई आपने कर लिया, ये कहना चाह रहे हो? दिखाओ 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 यार, ये बहुत पैशनेट है। आपने अंगुली पलट दी क्या? तो ये डांस थोड़ी करना है। ओके, ये भाई कर रहे हैं, पूरा विश्वास है। अरे यस, यू कैन क्लैप फॉर दैट। ये दूसरा व्यक्ति मिला है यार आपके स्कूल के अंदर। आपसे पहले आपकी स्कूल के ही कल वाली मेरी परसों वाली स्कूल में आपके एक मैम ने किया था। ये एक मैम थी, उन्होंने किया था। कोई हजार लाखों में कोई मिलता है भाई ऐसा वीर, तो भाई इज ए गुड थिंग। और आपको थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा। एक काम और करके देखते हैं भाई, कर पाता है क्या भाई? व्हाट्स योर गुड नेम? साजन सिंह। एक बात और बताओ, एक और करो ना, ऐसे करके देखो, ये वाला हो रहा है क्या? वो नहीं हो रहा, कहीं ना कहीं पर हो जाएगा। लास्ट एक्सरसाइज बता रहे हैं आपको, वैसे का वैसा करो। अभी आपको क्या करना है, देखो ये थंब आपको दिख रहा है, इसको रोल करिए ऐसे और वापस से जोड़ लीजिए, ठीक है? फर्स्ट फिंगर रोल करेंगे, लेकिन थंब को चिपका के रखना, ऐसा अलग मत रखना। फर्स्ट फिंगर रोल करिए, वापस चिपका लीजिए, ठीक है? सेकंड फिंगर रोल करिए, वापस चिपका लीजिए। अभी आपको एक छोटी सी चीज फील होगी, जितना तेज आप इस थंब को कर रहे हो, फर्स्ट फिंगर कर रहे हो, सेकंड कर रहे हो, क्या उतनी शिद्दत, उतनी तेजी से आप ये थर्ड फिंगर कर रहे हो, या आपको थोड़ा सा स्ट्रेस फील हो रहा है, या हाथ आपका ऐसे छूट रहा है, या इसके मुकाबले वहां स्ट्रेस हो रहा है ना?